Hello and welcome to I'm the Best Mom. I trust you all are keeping well and staying safe. I'm the Best Mom is committed to make your motherhood a joyful experience. Today, we are on the 44th episode of Cover Page Cover Story, and we are going to have a discussion making the invisible visible in your child's behavior. And I'm extremely happy to have Dr. Nirali Lohia with us today. She's a consultant developmental pediatrician, Silver Lining Pediatric Super Speciality Hospital, Nagpur, with an MBBS from BJMC Ahmedabad, a gold medalist to her journey of education, MD Pediatrics at NHL Municipal College, Ahmedabad, fellowship in the development and behavioral practice from Bharati Vidyapeeth, Pune, a visiting fellow and developmental pediatrics and neurodisability at Liverpool in UK, trained in various national and international courses with different body movement, basic and advanced, DASI, early intervention, publication with the national and international, multiple presentation and awards to her credit. And she is also the reviewer, Journal of Autism and Developmental Disorder, International. Areas of special interest where Dr. Nirali carries is the early intervention, autism spectrum disorder, developmental delay, ADHD, NICU graduates, learning disability, sleep disorder, and so many. Today, in conversation with Dr. Anuj Rastogi sir, we will be learning quite a lot of things, which are sometimes we miss out during our, while raising the kids when the child is a special child. Before we get into the session, I'll take another 2 minutes to share with you all a beautiful 2 minutes clip.
रियो, वो कौन है? अरे वो तो चिंटू है, अभी अभी यहाँ रहने आया है। अरे यार, उसे तो कोई बीमारी हो गई है, ऑटिज्म या कुछ। ऑटिज्म? ये क्या होता है? हेलो एवरीवन, आज हम सबको एक फिल्म दिखाने वाले हैं। तो अब देखिए, माय नेम इज खान। एक बात याद रखना बेटा, इस दुनिया में सिर्फ दो किस्म के इंसान हैं। अच्छे इंसान जो अच्छा काम करते हैं और बुरे जो बुरा। मेरा नाम रिजवान खान है। खान, हो सकता है आप लोगों को मैं थोड़ा सा अलग लगूं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं पागल हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। कोई नहीं बता पाया कि मेरे ऐसे होने की वजह क्या है। मैंने अम्मी को दिया वादा पूरा कर लिया, अपने लिए एक खुशहाल जिंदगी बना ली मैंने। तो आपको ये फिल्म अच्छी लगी? हाँ हाँ। क्या आपको पता है इस फिल्म में जो बीमारी दिखाई गई है वो कौन सी है? उसे ऑटिज्म कहते हैं। ये बीमारी काफी स्पेशल है और इसके पेशेंट भी काफी स्पेशल होते हैं, जैसे मूवी में शाहरुख खान और हमारे कॉलोनी में चिंटू। डरो मत चिंटू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, इस बीमारी के बारे में बताने के लिए हमारे कॉलोनी में एक स्पेशल व्यक्ति आ रहे हैं, तो स्वागत कीजिए डॉक्टर अनुज रस्तोगी का। प्यारे बच्चों, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जो बच्चे होते हैं बहुत स्पेशल हैं, बहुत डिफरेंट हैं और उनमें कुछ बच्चे तो बहुत टैलेंटेड भी हैं। उन बच्चों को बेटा अपने साथ लेके चलो, उन्हें अपने जैसा बनने में हेल्प करो। वो हमारे और आपकी तरह बात को नहीं समझते हैं। सोशल कम्युनिकेशन करने का तरीका डिफरेंट है और जितना जल्दी तुम उन्हें अपने साथ मिक्स कर लोगे बेटा, वो उतनी जल्दी ठीक होने लगेंगे, एडजस्ट होने लगेंगे। बच्चों, इनका बिल्कुल भी मजाक नहीं बनाना है, क्योंकि इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। इन्हें भगवान ने ऐसे ही बनाया है। Good evening, ma'am, and good evening, friends, and thank you, Deepman, for inviting me for this such a good show. मुझे याद पड़ता है आज से करीब 16-17 साल पहले आई वॉज इन स्टेट्स विद माई फैमिली एंड मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो फ्लाइट शिफ्ट होनी थी और लगेज जा चुका था। मैं भी बहुत परेशानी में था और मैं और मेरी फैमिली क्यू में थे। अब हमारा नंबर आ रहा था और हमें ये था कि फ्लाइट अब दूसरी अलॉट हो जाएगी। तभी आई सॉ वन लेडी हु वाज हाउलिंग और उसका बेटा भी बहुत शोर मचा रहा था। फिर वो she came to me and she requested, my son is having autism and he is now irritated, you please give me chance to have my things done और मुझे अपने से क्यों में आगे आने दो। At that moment of time I read about autism in my book, but what is autism? I was really sensitized at that moment of time। वो चुप खड़ा हुआ बच्चा क्यू के अंदर बहुत देर से खड़ा था, तो वो परेशान हो गया और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, धक्का वगैरह देना शुरू कर दिया। So this was my first real encounter with autism, and it forced me to think about this. फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ता चला गया और ऐसे बच्चे हमें दिखाई देने लगे जो जिनकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हो रही थी। तो पहले मैं बोलता था अगर बच्चा सुनता सही है तो बोलेगा जरूर, ये तो हो सकता है थोड़ा देर से बोलेगा बट बोलेगा। फिर धीरे 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 और टाइम पास होता गया। I realized कि there is something wrong also with some children, not with all the children। उनमें बहुत सारे जिनको मैंने बोला है बोलेगा जरूर, बोले और खूब बोले, क्योंकि मैं सबकी ईयर चेक करता था, नॉन सिक्योरिटी टाइटिस मीडिया देखता था और कोई हियरिंग प्रॉब्लम है, कई बार हियरिंग असेसमेंट भी कराता था। आई टू आई कांटेक्ट, एक पीडियाट्रिशियन होके आप इतना तो पहचान ही लेते हो कि बच्चा इसका बिहेवियर कितना अच्छा है और कैसा है। बट धीरे धीरे और इस तरह के बच्चे आने लगे, कुछ सीजर्स के साथ आने लगे, कुछ 4-4 साल के हो गए तब भी बोलना शुरू नहीं किया या पेरेंट्स की नहीं सुनते थे। देन आई
also started realizing there is something, autism is common here. और लॉकडाउन के बाद तो ऐसा लगता है जैसे आंधी आ गई. So please you elaborate this phenomena. जब बच्चे जब पैदा होते हैं, क्योंकि इसमें रिग्रेशन ऑफ माइलस्टोन होता है, 1 साल तक बहुत सारे बच्चे ठीक होते हैं. So what happens to their brain? जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसका जो सब सोशल स्माइल वगैरह, उसका अपने पेरेंट्स को देखना, और बहुत से बच्चे तो मामा पापा सब बोल पाते हैं, और वो 1 साल के बाद उनमें या 1.5 साल के बाद रिग्रेशन आने लगता है. और कुछ बच्चे डिनोवो, जैसे कुछ बच्चे देख के हमें ऐसा लगता है 4 महीने की उम्र पे या 6 महीने की उम्र पे सोशल स्माइल नहीं है, या वो चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं थोड़े बड़े होके. क्या ये व्हाट इज दिस फिनोमेना, और व्हाई इट इज सो वेरिड? बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी बायोलॉजिकल टेस्ट फॉर ऑटिज्म like some MRI or CT scan or some blood test. So how should we know? और as a parent, जैसे हमारी जो मीटिंग आज पेरेंट्स के लिए है, कब उन्हें सस्पेक्ट करना चाहिए there is something wrong with their children? Yeah, thank you so much, sir. Thank you. First of all, I am the best mom, and Anuj Rastogi, sir, that I'm here for the session. So, as very rightly said, sir, आपने बहुत अच्छे से, frankly, आपका वीडियो भी बहुत अच्छा था, and the way you explain your journey or how you see the patients was really interesting to know. So, yes, as you said, presently after pandemic, even I feel इतना rampant हो गया है कि 50 में से एक बच्चे को at least features of autism तो दिख ही जाते हैं. Whether we give the diagnosis or not we give the quasi autism, it's a different thing, sir. पर यस, उनमें कुछ ना कुछ फीचर्स दिखी जाते हैं. जैसे आपने करेक्टली बोला, ये बच्चों का सोशल कम्युनिकेशन, आई कांटेक्ट, रिस्पॉन्स टू नेम, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग होता है. तो यूजुअली व्हाट पेरेंट्स से कि हमारा बच्चा मूडी है, अपने हिसाब से करता है, उसको सब आता है, पर हम बोलते हैं तब हमारे साथ ट्यून इन नहीं होता है. सो बहुत मूडी है. एंड अनदर थिंग इज सर्टेन काइंड ऑफ रेपिटेटिव इंटरेस्ट, मतलब अपने हिसाब से चीजें करना, या उसके हिसाब से अगर थोड़ी सी भी चीजें नहीं हुई तो जिद्दीपना, चिड़चिड़पना बहुत ज्यादा होना, ये सब चीजें, या एक ही प्रकार की रुचि या अलग तरीके का प्ले, जब ये चीजें देखने में आती है, वी सी सम ये फीचर्स ऑफ ऑटिज्म हो सकते हैं. एज यू आर सेइंग रिग्रेशन के क्यों कॉमन है, कितना कॉमन है या क्यों होता है. सो आउट ऑफ 3 kids, usually the study says 1 kid with autism spectrum disorder regresses between the age of 16 to as high as 48 months. मतलब 16 महीने से 4 साल के अंदर तक 3 में से एक बच्चे को जो चीजें अच्छी चल रही थी, जैसे उसका सोशल स्माइल था, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग था, नाम का रिस्पॉन्स था, जो हम फर्स्ट बर्थडे तक बोलते हैं कि फर्स्ट बर्थडे तक बच्चा क्या क्या कर रहा था, चीजें वर गुड, चीजें वर बेटर, एंड देन सडनली एट 15-18 months दे सी अब नाम का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, अब चीजें दिखानी बंद कर दी है, बॉडी पार्ट्स दिखाना बंद कर दिया है. सो 3 of the 1 kid may have this journey. Exactly attribution, whatever the literature is saying is वो एज के बाद एक तो क्या होता है स्क्रीन टाइम. यूजुअली इफ यू आस्क द पेरेंट्स कि व्हाट इज द टाइम जब आपने स्क्रीन शुरू किया, 12-15 महीने पे हमने स्क्रीन शुरू कर दिया था. ओके, इवन कई पेशेंट तो अभी ऐसे बोलते हैं कि 8-9 महीने बच्चे को भी हम स्क्रीन, टीवी, मोबाइल का यूज दे रहे हैं. प्लस द सोशल स्टिमुलेशन, द पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी वंस द चाइल्ड स्टार्ट्स वॉकिंग. सो वॉकिंग आ जाता है, फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा सोशल स्टिमुलेशन मुझे लगता है कहीं बार नोटिस में नहीं आता, या स्टिमुलेशन थोड़ा कम हो जाता है. सो ये सब चीजों का ओवरलैप, मतलब ये रिस्क फैक्टर्स है. बच्चे को पहले से ही शायद कुछ ना कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकता है ऑटिज्म का, बट ये रिस्क फैक्टर्स है कि अब ऑटिज्म के फीचर्स या तो ग्लेरिंगली या तो बच्चा रिग्रेस होके अपने सामने आएगा. सो दिस आर मेनली द थिंग्स व्हिच वी ऑब्जर्व. एंड एज यू करेक्टली सेड, इट कैन हैपन एट एनी एज. कई बार 2-2.5 साल के बच्चे भी आते हैं पीछे जाके, एक मैडम पहले कर रहा था अभी नहीं कर रहा, पर यूजुअली उन बच्चों में शारीरिक विकास अच्छा चल रहा होता है. अगर आप पूछेंगे चलना, भागना, बैठना, वो कुछ कम हुआ क्या, नहीं, ये तो एक जगह नहीं बैठता, सब कुछ करता है, सिर्फ नाम का रिस्पॉन्स और जो बोल रहा था वो भूल गया है. एंड अनदर थिंग इज, कई बार सर वो मीनिंगफुल वर्ड्स भी नहीं होते हैं वोकैबुलरी में. व्हेन यू इलैबोरेटली आस्क कि सही में आपको ही देख के मम्मा बोल रहा था, आपको ही देख के दादा बोल रहा था, नहीं, वो रैंडमली दादा, मामा, बाबा तो तय है. सो शायद वो पहले से भी मीनिंगफुल वर्ड्स ना हो, मे बी सटल फीचर्स ऑफ ऑटिज्म पहले से भी हो, पर ये सब चीजों के बाद ग्लेरिंगली या बहुत ज्यादा देख के अपने को उभर के दिखने को मिलते हैं, और क्लियर कट फीचर्स ऑटिज्म के आफ्टर 24 months वी कैन इजीली सी.
why it is so important to pick up it early? Yes, sir. Because as we always say, कि human brain continuously develops. In fact, adult age में भी human brain develop होता है, but with a very limited capacity. So first early जो 1000 days बोलते हैं, first 365 days obviously, first 9 months in mother's womb, and उसके बाद का जो 2 years का बच्चे का intervention का time होता है, जहाँ brain almost 60 to 70% तक develop हो जाता है. So obviously we need to pick up these children early. जितना जल्दी ब्रेन डेवलप हो रहा है या प्लास्टिक जैसा है, आप जितना बदलना चाहो बदल सकते हो. व्हाई नॉट वर्क अर्ली एंड रादर देन वेटिंग. जल्दी सीखेगा, अच्छा सीखेगा. इसको हमारी भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं. जो प्लास्टिक जैसा ब्रेन जल्दी पिकअप करेगा, जल्दी सीखेगा, और तब तक उतने फीचर्स डेवलप नहीं हो गए होते हैं कि हमें काम करने की दिक्कत आए. सो इट्स ऑलवेज अर्ली टू वर्क ऑन द चाइल्ड. वंडरफुल वंडरफुल. सो क्या अर्लीस्ट साइन है, बिकॉज जब वो पीडियाट्रिशियन के पास भी पहुंचते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बच्चा एकदम नहीं आता, या तो वैक्सीनेशन के लिए आता है या फिर कुछ बीमारियों में आता है. तो ये डेवलपमेंट के लिए वेल बेबी चेकअप तो कंसेप्ट है ही नहीं इंडिया के अंदर कि कोई वेल बेबी चेकअप के लिए जाए. तो क्या हम अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं कि जो अर्ली एज पे 4 मंथ की एज पे और 8 मंथ की एज पे 7 मंथ की एज पे थोड़ा सस्पिशन हो, अब चाहे उसको ऑटिज्म हम लेबल करें या ना करें, हम उसके लिए करेक्टिव मेजर्स अगर लेना शुरू कर देंगे, तो जैसा कि आपने बताया जो ब्रेन के वायर्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं, जो हर बच्चे को उसको एक डिफरेंट बच्चा, डिफरेंट इंडिविजुअल बना रहे हैं, उसको थोड़ा सोशल कम्युनिकेशन में बेटर रखेंगे. तो मेरे ख्याल अगर सोशल माइलस्टोन को अगर हम सब लोगों को टीच करना शुरू कर दें, तो we can pick up it early. What is your call on this? Yeah, very true, sir. Very aptly said. I think so. आप भी अवेयर होंगे, हम इसको रेड फ्लैग साइंस बोलते हैं. रेड फ्लैग मतलब अगर ये चीज पकड़ी गई, रुकना नहीं, हमें तुरंत ही कोई भी डॉक्टर का संपर्क लेना चाहिए. जैसे एज अर्ली एज, अभी तो पहले तो बोलते थे 6 months तक आई कांटेक्ट की वेट करो, अभी तो हम बोलते हैं 6 weeks, 2 months भी हो गया. अगर आपका बच्चा 2 महीने पे भी अगर आपको लगता है आपकी तरफ ध्यान नहीं देता है, तो डेफिनेटली गो फॉर योर पीडियाट्रिशियन. देन अगर आप उसको उठाने के लिए हाथ दे रहे हो, आपका बच्चा आपको वही जेस्चर दिखा नहीं रहा है, बाय 6 months यू शुड डेफिनेटली सी योर डॉक्टर कि मैं उठा रही, वो मुझे क्यों हाथ नहीं दिखा रहा है. अगर 9 महीने का 10 महीने का बच्चा है, आपका बच्चा अगर नाम का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, टीवी के साउंड्स का रिस्पॉन्स दे रहा है, तो यू शुड डेफिनेटली थिंक कि इसको शायद हियरिंग का, ऑटिज्म का कोई भी तकलीफ हो सकता है, क्योंकि नाम का रिस्पॉन्स अराउंड 9 to 10 months बच्चे में आराम से आ जाता है. अगर आपका 1 साल का बच्चा है, अगर आप छोटे से इंस्ट्रक्शन दे दो, रख दो, मिड लाइन प्ले या आपके इमिटेशन छोटे छोटे नहीं करता है, यू शुड डेफिनेटली थिंक कि ये सब चीजें वो क्यों नहीं कर रहा है. अगर वो यही बच्चा आपका 18 months पे अगर कोई भी फर्स्ट आपका मम्मी पापा फैन भुभू कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बोल रहा है, या वो चीज को इंडिकेट पॉइंट करके भी नहीं दिखा रहा है, जिसको हमारी भाषा में जेस्चर्स या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एटलीस्ट इशारा तो कर दे. अगर वो इशारा भी नहीं कर रहा है, देन डेफिनेटली थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग. ये सब अर्ली, मैं 18 months तक के बोली. और कभी भी ऐसा लगे कि सीख गया था वो वापस गया है, या फिर ऑलरेडी एक बच्चे में कोई भी डेवलपमेंट का त्रास हो, इट्स नॉट अबाउट ऑटिज्म, कोई भी डेवलपमेंट का त्रास हो, तो दूसरे बच्चे में एज अर्ली एज आपके पीडियाट्रिशियंस को पहले से बताना चाहिए कि बड़े बच्चे को तकलीफें हैं, आप दूसरे बच्चे को भी प्लीज सर एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बिजी ओपीडी में हमेशा सिबलिंग हिस्ट्री भी पूछी जाए. सो यू कैन ऑलवेज टेल ओपनली योर डॉक्टर whatever concerns you have and whatever you want to say them. बट मैंने ये देखा है जब पेशेंट हमारे पास मतलब पेरेंट्स आते हैं, तो दे वांट अ लेबल, और मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि लेबल लेके क्या करना है. अगर आप बिकॉज एज सून एज यू स्टार्ट सेइंग देम ही इज ऑटिस्टिक, ऑटिज्म है, तो वो उससे एक फाइट करने की जगह बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, विंडो शॉपिंग में लग जाएंगे, वो फिर दूसरे डॉक्टर पे जाएंगे, और वो हर एक से सुनना चाहते हैं एफर्ट डालने की जगह कि इसको ऑटिज्म नहीं है. तो मैं तो ये बोलता हूँ कि आप इसका लेबल ना लेके इसको जो प्रॉब्लम है इसको डील करो. अगर इसके लिए हम आपको कहीं स्टिमुलेशन के लिए भेज भी रहे हैं या अर्ली इंटरवेंशन के लिए भेज भी रहे हैं, तो उससे इसको कोई नुकसान नहीं है. और मेडिसिन का रोल तो बहुत बाद में आता है, जब इरिटेबिलिटी है या कंडक्ट डिसऑर्डर है, बिहेवियरल डिसऑर्डर है, देन वी कैन स्टार्ट. आप कुछ स्लाइड दिखाने वाली थी हमें, हम वेट कर रहे हैं. Yes. स्लाइड
Yes, very aptly said, sir. Even I will say the same thing. मैं भी जब मेरे ऊपर में पेशेंट आता है तो मैं यही बोलती हूँ, डायग्नोसिस आप हम पे छोड़िए, डॉक्टर्स के ऊपर बोलिए. अगर हम आपको काम बोल रहे हैं, वो एरियाज पे अगर आप काम भी करेंगे, आप ऑटोमेटिकली हमारे डायग्नोसिस पे काम कर रहे हो. सो लेट्स वर्क इन द टीम रादर देन थिंकिंग अबाउट एक वर्ड पकड़ने से अच्छा अपन वो चीजों पे काम करते. सो नाउ आई एम शेयरिंग सम सिंपल स्लाइड्स विथ यू, क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स अभी आजकल बिहेवियरल इश्यूज के साथ बहुत बोल रहे हैं कि मैडम बिहेवियरल इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं बच्चों में, स्पेशली पोस्ट कोविड, एज यू राइटली सेड. सो इज माय स्लाइड विजिबल टू यू? Yes, ma'am. We can see. And the slideshow is running as well? Yeah. Okay, fine. So I've just tried to made up some simple tips or simple concerns from parent side which we can elaborate. जो अपन ने टॉपिक रखा है आज कि इनविजिबल से विजिबल बिहेवियर कैसे पहचाना जाए या ऐसा कुछ. So we can go for that. So what's a behavior? Usually parents बोलते हैं behavior मतलब खराबी चीज है. वो कभी उनको ये नहीं लगता है behavior can be good as well. So it's very natural और it's very good to determine कि पहले आपके बच्चे का good behavior है या पहले आपके बच्चे का वो बैड बिहेवियर है. क्योंकि कोई भी रिएक्शन कोई भी एनवायरनमेंट में बच्चा जब देगा दैट्स अ बिहेवियर, नॉट नेसेसरली अ बैड बिहेवियर. आजकल बोला जाता है कि 11 से 20% मतलब 5 में से एक बच्चे को या तो बिहेवियर या तो कोई ना कोई इमोशनल डिसऑर्डर देखने को मिलता है. और ये बिहेवियर बच्चे से ज्यादा कई बार पेरेंट्स को स्ट्रेस में डाल देते हैं कि हमारा बच्चा ये नहीं करता वो नहीं करता. सो इट्स ऑलवेज स्ट्रेसफुल टू द फैमिली एज वेल. सो व्हाइल इलैबोरेटिंग द हिस्ट्री हम पेरेंट्स से भी जानना चाहते हैं विथ फैमिली. अब कब बोलेंगे कि बिहेवियर तकलीफ वाला है, बहुत ज्यादा तकलीफ वाला है? जब उसकी फ्रीक्वेंसी दूसरे बिहेवियर से ज्यादा हो. जैसे कि अगर मैं बोलूं 15-15 मिनट तक दिन में 3 बार से ज्यादा अगर उसकी जिद है और हर जगह जैसे स्कूल में भी, प्री स्कूल में भी, या फिर कहीं बाहर मॉल में गए या फिर घर में, अगर हर जगह पे यही चीजें देखने को मिलती है, यस इट इज ट्रबलसम. कुछ अलग प्रकार का या नया बिहेवियर जो पहले बच्चे में नहीं था अभी सडनली स्टार्ट हुआ है. ओके, दैट इज समथिंग यू शुड ऑलवेज थिंक. क्यों है वो बच्चे के बिहेवियर के एज के हिसाब से नहीं है. अगर आप 1.5-2 साल का बच्चा देखोगे तो ओवरऑल भी ही लाइक्स टू रोम अराउंड, क्यूरियस होगा, चीजों को देखेगा, चीजों को लेने की कोशिश करेगा. तो अगर आप 1.5-2 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करो एक ही जगह बैठ के सब कुछ करे, दैट्स नॉट पॉसिबल. पर अगर आप 6 साल का बच्चा है, वो कंटिन्यूअसली ऑन द गो है, भाग रहा है, देन ऑब्वियसली थिंक कि ये एज के हिसाब से शायद बराबर नहीं है. और ऑब्वियसली जब पेरेंट्स को त्रास होता है, कंसर्न्स होते हैं, देन ऑब्वियसली इट इज ट्रबलसम. So it's always nice to demonstrate कि whether the behavior is bad or whether the behavior is good. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉब्लम डिफाइन करना चाहिए आप डॉक्टर को जब भी आप आते हो. जैसे कि अगर कोई बिहेवियर हुआ तो उससे पहले क्या हुआ था और उसके बाद आपका रिस्पॉन्स क्या था. मैं सिंपल एग्जांपल दूं. अगर आपको नीचे की इमेजेस दिख रही है, बच्चा स्टार्टेड, दैट वाज अ न्यू अनसेट बिहेवियर. पेरेंट केम टू मी कि मैडम बच्चा ना अभी मुझे मार रहा है, मम्मी को फेस पे मार रहा है. पहले कभी ऐसा नहीं करता था. अभी तो छोटे मोटे थोड़े मिनट में आता, मार के चला जाता, थोड़े मिनट में मार के चले जाता. ठीक, आप देखिए, दवाई करिए, टेस्ट करिए, ब्लड टेस्ट करिए, एमआरआई करिए, कहाँ कहाँ पहुंच गए. सो आई स्टार्टेड टेकिंग द हिस्ट्री एंड व्हेन आई टुक द डिटेल हिस्ट्री, आपको पता है कितनी सिंपल चीज सामने आई कि जब वो बच्चा मामा को हिट करने जाता है, व्हाट वाज द अदर पेरेंट्स रिस्पॉन्स. क्योंकि क्या होता है कई बार बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बहुत लोगों के साथ रहते हैं, तो आजू बाजू का सराउंडिंग का भी उतना ही रोल होता है. उसके पापा हंसते हैं जब बच्चा अपनी मम्मी को मारता है. अभी 2 साल का बच्चा, उसको तो कोई भी अटेंशन चाहिए मम्मी या पापा का, हंसने का या जो भी है, तो ही वाज जस्ट सीकिंग अटेंशन ऑफ फादर व्हेनेवर ही वाज हिटिंग मदर. तो ही लर्न समथिंग कि मम्मी को मारने से पापा हंसता है, आई एम गेटिंग समथिंग, आई एम डूइंग समथिंग गुड. ये चीजें सिर्फ पापा ने इग्नोर करना चालू किया, विद इन 2 वीक्स द बिहेवियर वैनिश्ड. तो कई बार इतनी सिंपल प्रॉब्लम होती है और उसका उतना ही सिंपल सोल्यूशन होता है. जरूरी नहीं दवाइयां या एमआरआई ही आपका सब सोल्यूशन. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एबीसी कि सही में बच्चे में दिक्कत है, एटमॉस्फेयर में दिक्कत है, या कहाँ पे दिक्कत है. ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चाइल्ड्स बिहेवियर. कई बार ऐसा होता है, कई बच्चे ही अगर अपन देखें तो उनका बिहेवियरल टेम्परामेंटली स्टाइल ही थोड़ा ज्यादा होता है. जैसे कुछ बच्चे शांति होते हैं, कुछ बच्चे ओवरऑल थोड़े क्यूरियस होते हैं, एक्टिव ज्यादा होते हैं. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो किसी से भी मिल गया सबसे पहले पुश करके बात करते हैं. ओके, सो इट इज समथिंग लाइक जो अपना स्वभाव बोलते हैं,
अपन एडल्ट्स हो गए, बड़े हो गए, तो हम उसको स्वभाव बोलते हैं या उसका नेचर बोलते हैं। छोटे बच्चों में हम उनको टेम्परामेंट बोलते हैं, पर ये चीज बिल्डअप हो रही होती है। इट्स नॉट समथिंग, इट्स द फिक्स्ड वन। ये चीज चेंज हो सकती है। अनदर थिंग इज बिहेवियरल स्टाइल, एंड ऑब्वियसली अनदर थिंग जो दूसरी चीजें हैं, बच्चा कैसे अडेप्ट हो रहा है, कैसा एक्टिव है, कैसा परसिस्टेंस है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से रेजिस्टेंस है कि नहीं। बहुत सारी चीजें बच्चे का बिहेवियर शेप करती है या बनाती है। इट्स नॉट ऑलवेज द चाइल्ड, इट्स ऑब्वियसली द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एज वेल। कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, जो पेरेंट्स हमारे साथ आते हैं, टेम्पर टेंट्रम्स, लेट जाता है मैडम, बिल्कुल सुनता नहीं है। मॉल में बोला टेडी बेयर नहीं लेना है, बॉल बैट नहीं लेना है, लेट गया और फिर हमें लेके ही देना पड़ा। पर वो समझे नहीं शायद कि लेट के देने से आपका बच्चा और 2 बार शायद ज्यादा लेटेगा, क्योंकि आपने तुरंत ही जैसे ही लेटा सबके सामने मॉल में, अरे ये तो बहुत सीन क्रिएट कर रहा है, आप दे दो। ओके, सो हमने कहीं ना कहीं गलत बिहेवियर रीइंफोर्स किया। वही उसने अगर कुछ अच्छा किया होता और हमने अप्रिशिएट करके दिया होता, तो वो चीज वो समझ सकता था कि कौन सी वजह से मुझे मेरा ये चीज मिला। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल, सांस रोक लेते हैं, झूठ बोलते हैं, मैं बोलूं उससे उल्टा ही करते हैं, गालियां देते, वेरी कॉमन, बिकॉज दे हियर फ्रॉम द फैमिली, दे हियर फ्रॉम द टीवी, मोबाइल, स्कूल में से सीख के आते हैं। वेरी इजीली दे गिव अब्यूजेस। अग्रेशन, गुस्सा वाला है, बहुत स्क्रीन मोबाइल का तो लत लग गया है मैडम। अभी नींद की तकलीफ है या खाने की तकलीफ है। When to see your doctor, वो तो सब बिहेवियरल कंसर्न्स थे, पर जरूरी है क्या वही चीजों की वजह से डॉक्टर को भी देखना पड़े? डॉक्टर को मैंने पहले भी बोला, जब हर सेटिंग में, जैसे कि घर में, बाहर, कहीं पे भी आप बाहर जा रहे हो, कोई सोशल सेटिंग में, जैसे कि मैरिज में या कहीं पे उसको लेके जा रहे हो, हर जगह पे अगर आपको देखने में मिले, हर लोग के साथ, जैसे मम्मी के साथ भी सेम, पापा के साथ भी सेम, आंटी के साथ भी सेम, नानी के साथ भी सेम, तब वो बिहेवियर डेफिनेट ट्रबलिंग है और उनको दिखाना चाहिए। जो बच्चे की सेफ्टी हिंडर करता हो, जैसे हेड बैंगिंग, सर पीट रहा है, ओके, या किसी और को काट रहा है या ऐसा कुछ, जहां दूसरों की या खुद की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो, डेफिनेटली यू शुड गो एंड सी अ डॉक्टर। पहले आपने बहुत बार ट्राई किया, बहुत सारे थेरेपी लिया, डॉक्टर को मिले, कुछ नहीं हो रहा है, डेफिनेटली आपको एक और बार कंसल्टेशन लेना चाहिए। और आपको जब लगता है कि कुछ घर में स्ट्रेसर्स हुए थे, जैसे कि कई बार अभी पैंडेमिक में बहुत लोग एडमिट हो रहे हैं, किसी घर में डेथ देखने को मिली है, तो बच्चे का बहुत बिहेवियरल और इमोशनल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो, डेफिनेटली यू गो एंड सी योर डॉक्टर। सो दिस आर यूजुअली द डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स व्हाट वी सी। अ पार्ट ऑफ बिहेवियरल इश्यूज बहुत सारी चीजें होती है, शायद बच्चा कहीं कहीं कोई कोई डिसऑर्डर में बैठ भी सकता है या एकदम नॉर्मल हो सकता है, सिंपल बिहेवियरल इश्यूज हो, कुछ भी हो सकता है। गो एंड सी योर डॉक्टर फर्स्ट, लेट हिम सी एंड से वी कैन वर्क इन दिस वे। आज अभी अप्रैल मंथ इज ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ, अब ऑलरेडी ऑटिज्म की बहुत सारी बात कर रहे हैं, तो आई जस्ट शो यू अ स्लाइड, आई एम रियली सॉरी इट्स नॉट वेरी क्लियर, but the increased prevalence from US is saying it's 1 in 59, and I'm very 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 sure pandemic ke baad it's something 1 in 42, which is not a reported published literature, but it will come soon, it will soon come in 2 or 3 months। 1 in 42 मतलब हर क्लास में एक आध बच्चे को ऑटिज्म के शिकार या फीचर्स हो सकते हैं। So as I think so we have already discussed, सर ने भी आपको सोशल कम्युनिकेशन के बारे में, जेस्चर के बारे में बहुत सारा बता दिया है। So I don't think so we should go into detail about autism. इसमें सिर्फ साइंस और सिम्टम्स ही मैंने बताए हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप कभी भी अगर देखना हो तो खुद भी एक बार देख सकते हैं। ऑटिज्म क्यों जानना जरूरी है, या जो सर बोल रहे थे डायग्नोसिस क्यों जरूरी है, वो हमारे लिए डायग्नोसिस जरूरी है क्योंकि उसमें दूसरे बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज या कोमॉर्बिडिटी मतलब एक से ज्यादा दूसरी चीज भी साथ साथ में चल रही होती है, जिसका निदान करना जरूरी है क्योंकि उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। ये सब चीजें, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, टॉयलेट इश्यूज, बच्चे को पता है बट स्टिल टॉयलेट ट्रेनिंग अभी भी नहीं हुआ होता है, सेल्फ इंजरी वगैरह, गुस्सा, अग्रेशन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। देयर आर सम मिथ्स एंड फैक्ट्स आई हैव जस्ट ट्राइड टू कवर, क्योंकि कई बार पेरेंट्स खुद ही गूगल बन के डॉक्टर से पहले खुद ही देखने लगते हैं, बहुत हाइपर एक्टिव है, चलो शुगर बंद कर दो, ये है चलो सबसे पहले डॉक्टर एमआरआई करवा दीजिए, लग रहा है कुछ ब्रेन में तकलीफ है, तो ये दवाइयां, मल्टीविटामिन तो देनी ही पड़ती, ये दवाइयां तो देनी ही पड़ती, GFCF डाइट, आजकल बहुत सारी चीजें अलग अलग, कैमल्स मिल्क, ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, तो ये सब चीजें इतनी सारी देखने को मिली है। सो बिफोर
सर्चिंग एनीथिंग फ्रॉम गूगल, एक बार अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए जिनका इतना एक्सपीरियंस है वो चीजों में, ताकि वो आपको सलाह दे सके कि ये आपके बच्चे के लिए हानिकारक है या फायदे का। कोई भी डॉक्टर आपको गलत सलाह आपके बच्चे के लिए नहीं देगा। इनफैक्ट पेरेंट्स को क्या चीजें होती है या सोसाइटी में और क्या मिथ्स होते हैं कि इन बच्चों को फ्रेंड्स नहीं बनाने। आई से फ्रेंड्स नहीं बनाने से भी ज्यादा दे डोंट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स, दे वांट टू मेक फ्रेंड्स, दे एंजॉय देयर कंपनी, सिर्फ उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, उनको फीलिंग्स ही नहीं होती, वो अकेले अकेले रहते हैं, शायद वो अपने आप अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाते, अकेले अकेले रहते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ पे सेंटर पे एक बच्चा है, एवरी डे ही सीज के मम्मा पापा एक दूसरे को रोज देते हैं एंड दे बिकम वेरी हैप्पी। फाइनली उसकी एक छोटी सी फ्रेंड बनी थी, उसको एक बार रोज शेयर करने की इच्छा हुई, वो गया रोज लेके। द ओनली थिंग इज उसको देने का जेस्चर नहीं आया। व्हाट दैट 2-year-old kid did, वो बच्ची को मार के आ गया। He wanted to make the friend, he had the feelings, but उसका एक्सप्रेशन गलत था। बच्ची रोने लगी, माँ लेके चली गई। आपके बच्चे को मारना आता है, उसको कुछ भी नहीं आता। So it's all the myths which we have that autism people doesn't have this. Intellectually disabled, in fact, as sir also said, they can be savants. बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं। आइजैक न्यूटन, ये सब जो साइंटिस्ट लोग थे उनको कुछ कुछ फीचर्स थे। सो नेवर थिंक कि बच्चा मतिमंद है। इट्स ओनली सीन इन चिल्ड्रन। कई अडल्ट्स भी हम देखते हैं जो बहुत अपने हिसाब से चीजें करना चाहते हैं। पानी का बॉटल चेंज हो गया, मेरा डेस्क हो गया, मेरा टेबल क्यों चेंज कर दिया, मेरे कपड़े यहाँ पे क्यों रख दिए। काफी इंट्रोवर्ट है, मम्मी को ज्यादा बोलना पसंद नहीं है। तो काफी फीचर्स अडल्ट्स में भी देखने को मिलते हैं, बट वो अनडायग्नोज चले जाते हैं बच्चों में, इसलिए वो अडल्ट बन जाते हैं और हमें लगता है बस वो उनकी आदतें हैं या उनका नेचर है। इट्स अ साइकेट्रिक कंडीशन, मतलब ये पागल है बच्चा, या फिर इसको तो एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ, मेंटल हॉस्पिटल के पास ले जाओ। इट्स सो बैड थिंग विच वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इन आवर सोसाइटी। वैक्सीन करता है, बहुत सारे पेपर जैसे आए थे कि MMR करता है क्या, और बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी आ गया था। आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। हर वैक्सीन हर बच्चे को जानी चाहिए, कोई भी वैक्सीन से ऑटिज्म नहीं होता है। सो प्लीज ऐसी मान्यता मत रखिएगा। बैड पेरेंटिंग, पेरेंट्स को नहीं आता इसलिए बच्चा ऐसा हो गया, पेरेंट अपने बच्चे को संभाल नहीं पा रहे। सो रादर पेरेंट्स एक दूसरे को ब्लेम करें, इससे अच्छा एक दूसरे के साथ मिलके अगर बच्चे के ऊपर काम करें, उनका स्ट्रेस भी कम होगा और बच्चे के ऊपर भी वो अच्छे से काम कर पाएंगे। ये बच्चे कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, इनको तो स्पेशल स्कूल या फिर अलग चीजें लगती है। रॉन्ग, दे कैन बी इंडिपेंडेंट। इनफैक्ट US में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो सिर्फ अगर ऑटिज्म अगर आप डालते हो तो उसको पॉजिटिव पॉइंट देके के वो प्रिफर करेगी आपको लेना, बिकॉज वो लोग अपने काम से काम रखते हैं। पॉजिटिव पेरेंटिंग, सर्टेन टिप्स आई वुड लाइक टू गिव दैट रिड्यूस द स्क्रीन, टीवी मोबाइल थोड़ा एटलीस्ट अपने बच्चों के साथ बच्चों का कम कर दीजिए, रादर देन वन वे स्क्रीन। What I am doing presently is one way screen. So if you want to give your child the screen, give it a two-way screen. जैसे कि वो तो मतलब क्या कर रहा है, jump कर रहा है, let's jump. So it will be something a two-way interactive screen. वो आपके बच्चे को शायद ज्यादा लर्निंग में हेल्प करे। हम बच्चे को सिर्फ ना बोलते रहते हैं, ये मत कर, ये मत कर, यहाँ जंप मत कर, ये मत कर, ये मत कर। कभी हम हमारे बच्चे को ये नहीं बोलते कि क्या कर। So we should always give the choices to your child. Maybe आपका बच्चा समझ के कुछ चॉइस प्रेफर करे। यूजुअली हम सोचते हैं कि हमने बोला है वही करना चाहिए, शायद बच्चे के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। So always give the choices rather than saying no for everything. And lastly, always appreciate your child whenever the child is doing good. Okay, it can be something simple सा, हग दे दिया, शाबाशी दे दिया, कभी आइसक्रीम खिला दिया, कभी ताली दे दिया। Everything for a child मैटर्स। आज ही ऐसा हुआ था मेरी OPD में, पहली बार बच्चे ने एक मम्मी को, ऑटिज्म वाले बच्चे मम्मा बोला, बट मम्मा का ध्यान नहीं था। देन आई सेड मम्मा यू कुड हैव इजीली पिक्ड अप एंड उसको हग कर लेना चाहिए था, क्लैप कर लेना चाहिए था। वो रीइंफोर्समेंट, हर सोशल स्टिमुलेशन का एक भी सेकंड गवाइए मत। आप छोटी छोटी चीजों में आपके बच्चे को सोशल स्टिमुलेशन दे सकते हैं, कई बार अपना ध्यान नहीं होता है। दिस इज नॉट एन आइडियल पेरेंटिंग व्हाट इट शुड लाइक। ये बच्चों का कोई भी दोष नहीं होता। डोंट हिट देम to become an ideal child. Nobody is ideal. Even I am not ideal. Nobody is ideal. So बच्चों को सुधारने से अच्छा, कैसे अपन सुधार पाए, वो मारने से अच्छा
रोल मॉडल बन के दिखाइए. And I always say, don't Google, ask your doctor rather than just be a doctor. So rather than Google, trust your doctor. Okay? So it's not easy. We are always there. Don't worry. We'll make sure the path becomes easy for you at each and every step. Okay, so that's all from my side. We'll be open to questions, and I think so. Fantastic, Dr. Nirali, fantastic. Thank you आपने बहुत अच्छे से elaborate करा और ये it is showing how much that you are having of the subject. Thank you so much. काश आप मेरठ में होती तो बहुत अच्छा होता. You do some It's online really nice to consultation also. Yeah, You do I some take sir. In pandemic, I think so, sir. We are all used to now. So used to. You share with our parents your online consultation platform as well. anytime. कुछ situations हैं जो मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा. जैसे बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं why my child avoids eye contact. Yes. So as eye contact is a basic part of communication. आप किसी से भी अगर बात करोगे, अगर आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हो, ओके, सो अल्टीमेटली आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो. ये बच्चे ओवरऑल सोशल कम्युनिकेशन में थोड़े कम होते हैं. सो इट कैन बी सी फर्स्ट ऑब्वियसली इट कैन बी अ साइन ऑफ ऑटिज्म, बट लेट योर डॉक्टर डिसाइड. कई बार क्या होता है, अगर बड़े बच्चों में देखा जाए कॉन्फिडेंस शायद कम हो सकता है, सेल्फ एस्टीम कम हो सकती है. कई बार बच्चे छोटे छोटे से बच्चे उनका ऑप्टिक मतलब जो आंखों की नस होती है उसमें तकलीफ हो सकती है. Go to your doctor, let him or her decide कि whether eye contact is a problem of autism. क्योंकि आप गूगल में सर्च करेंगे तो सबसे पहले ऑटिज्म ही आएगा. Eye contact does no eye contact is equal to autism in Google presently. So इससे अच्छा एक बार डॉक्टर को मिलिए. आंख की तकलीफ है या फिर ऑटिज्म की तकलीफ है या और कोई बीमारी है, वो आपको डेफिनेटली देख के बताएगा, क्योंकि पूरा बच्चा देखना पड़ता है. बिल्कुल, बहुत बढ़िया कहा आपने. पूरा बच्चा देखना पड़ता है और वो बच्चे को माँ बापों के साथ देखना होता है. Yes. तो हम कई बार जैसे पेरेंट्स को देखते हैं और फिर बच्चे को देखते हैं. अब आजकल सब मास्क लगा के आते हैं तो कोई कांटेक्ट ही नहीं बन पाता. उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, भाई मास्क हटा के बात करो, देन वी कैन बेटर कम्युनिकेट टू यू. बट मुझे लगता है पेरेंट्स ना अपनी वो जो डॉक्टर बताना चाहता है वो सुनना नहीं चाहते. वो कुछ अपनी बातें कहना चाहते हैं कि उन्होंने भेजा है, उनके जानने वाले हैं. मतलब दे वेस्ट लॉट ऑफ टाइम और वो डॉक्टर को दूसरी डायरेक्शन में ले जाते हैं. Possible. अच्छा, इज देयर सम टर्म दैट इज नोन एज ट्रांजिएंट ऑटिज्म? ऐसा भी कुछ होता है ट्रांजिएंट ऑटिज्म? कुछ समय के लिए रहा बच्चा फिर चेंज हो गया. Yeah, transient autism or yes, we also say quasi autism. So these are the features of autism. जैसे quasi autism, transient autism, virtual autism. ऐसे आपने बहुत सारे terms सुने होंगे. So usually I always ask about genetic history. फैमिली हिस्ट्री क्या है, किसी को कोई ब्रॉड ऑटिज्म फिनोटाइप के फीचर्स है कि नहीं ममा एंड डैडा को, एंड देन आई टेक द डिटेल हिस्ट्री. इफ आई ऑलवेज से टू देम वर्क ऑन सिम्टम्स, जैसे आपने बताया वर्क ऑन सिम्टम्स, वी मॉनिटर द चाइल्ड फॉर 3 to 6 months. क्योंकि अभी पैंडेमिक में बहुत बच्चे ओवरऑल भी सोशली स्टिमुलेट नहीं मिला है. अब बच्चों को सोशली स्टिमुलेट दो, within 6 months if they improve in jumps and something, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है. So we always say them कि ये शायद quasi autism या transient autism का शिकार हो सकते हैं, but we always say कि आप follow up पे रहिएगा, क्योंकि autism comes in waves and bits. 6 years पे बच्चों के साथ थोड़ी झगड़े हो जाते हैं, 12-13 years पे एंजाइटी डिप्रेशन के साथ आते हैं. तो आपके डॉक्टर के साथ संपर्क में रहिएगा. कुछ एज में शायद जब डिमांड्स बढ़े तो ऑटिज्म के फीचर्स आ सकते हैं. बट यस, ट्रांजिएंट ऑटिज्म के आजकल सर पैंडेमिक में अपन काफी केसेस देख रहे हैं. आई एम वेरी श्योर सर आप भी देख रहे होंगे. हाँ, बहुत, मतलब ऑटिज्म लाइक. यस. एक और एक टर्म होती है ना, PDD-NOS. या यस, थोड़ा बताइए. परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड. सो ये चीज DSM-4 2013 से पहले इसको PDD-NOS बोला जाता था, PDD बोला जाता था, ऑटिज्म ऑटिस्टिक बोला जाता था. 2013 के बाद अभी इसको पूरे को एक साथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. सो नाउ PDD-NOS इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. पर जो बच्चे पूरे सिम्टम्स में मैच नहीं होते ऑटिज्म में, तो पहले कई बार कई डॉक्टर्स उनको PDD-NOS करके टर्म में डिफाइन करते थे. So there is another question. Why do my son of 2.5-year-old cover their eyes, face, or ears with his hands, especially in social gatherings? Okay.
सो सोशल गैदरिंग में कई बार क्या होता है कि मुझे एग्जैक्टली उन्होंने सोशल गैदरिंग का एग्जैक्ट नहीं बताया, जैसे कितने लोग थे, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था। जैसे कई बार बहुत क्राउडेड प्लेस होती है, कई बार बहुत लोग वाले होते हैं, बहुत सारा लाइटिंग होता है। तो अगर आंख पे हाथ रख रहा है तो उसका अलग रीजन होगा, कान पे होगा तो आवाज का रीजन हो सकता है। तो इट कैन बी अ पार्ट ऑफ सेंसरी इशू। ओके, बट ये सब जो भी क्वेश्चंस है उसके लिए पूरी बच्चे की हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। ये एक क्वेश्चन से हम आपको एग्जैक्टली आपके बच्चे को ऑटिज्म है या और कोई बीमारी है नहीं बता पाएंगे, पर पूरी हिस्ट्री देके बता पाएंगे। पर हाँ, ये चीज कंसर्न वाली है और डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए। ये सेंसरी इशू एक पार्ट हो सकता है। Why do my child with the speech delay does echolalia, repeat words or phrases, बार बार एक ही बात कहता रहता है? yes. जो भी बच्चे रिपीट करते हैं उसका एज पहले देखिए। कई बार क्या होता है, अगर आपका बच्चा 2 या 2.5 साल का है, 1.5 साल का है, अगर वो चीजें रिपीट कर रहा है तो वो ऐसा भी हो सकता है वो लैंग्वेज लर्न कर रहा है, दैट कैन बी नॉर्मल। अगर आपका बच्चा चीजें समझ नहीं पा रहा है, जैसे मैं अगर पहली बार अगर आपको बोलूं पेनिसिलेविया, आप खुद भी रिपीट करेंगे पेनिसिलेविया ये क्या है, तो आपको रिपीटिशन करे तो इट डजंट मीन कि आपने चीजें सुनी नहीं है, शायद ये पहली बार आपने सुनी है, तो शायद समझने की तकलीफ हो सकती है, उसके लिए ये चीज नई है, कॉम्प्रिहेंशन की दिक्कत हो सकती है। और तीसरा, ऑटिज्म में भी कई बार बच्चे जैसे पजल्स पूरे राइम्स बोल देते हैं, पोएम्स बोल देते हैं, एबीसीडी बोल देते हैं, पर कई बार उसका मीनिंग नहीं होता है। सो उसको हमारी भाषा में रेपिटेशन या इकोलेलिया बोलते हैं। तो आप पहले एज के साथ देखिए, बच्चे की दूसरी चीजें देखिए, डेफिनेटली डॉक्टर को मिले और लेट हिम और हर डिसाइड कि ये इकोलेलिया नॉर्मल एज का वेरिएंट है, कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम है, लैंग्वेज डिसऑर्डर है या ऑटिज्म का भाग है। Why do my child do not talk at all even at the age of 3? Okay, so at the age of 3 I'll say very early आपने बोला कि do not talk at all. ओके क्योंकि हम नॉन वर्बल को भी एटलीस्ट वी गिव अस 6 years ऑफ एज, हम ऐसे ही नहीं बोलते कि 3 years पे डू नॉट टॉक एट ऑल, ऐसा कुछ होता है। आप सबसे पहले हियरिंग देखिए कि आपका बच्चा सुन पा रहा है कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बोलने के लिए हियरिंग आना चाहिए। तो आप सबसे पहले देखिए कि उसको साउंड्स का, नाम का, चीजों का रिस्पॉन्स है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी अगर उसकी कोई भी लैंग्वेज नहीं है तो इशारे वगैरह करता है, चीजें समझ पाता है कि नहीं वो देखें। और फिर ऑब्वियसली 3 साल का बच्चा आराम से मुझे खाना दो, एक प्रोनाउन, एक एक्शन और एक वर्ब, तीनों चीजें यूज कर सकता है। अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा है, गो एंड सी योर डॉक्टर। बहुत सारे कॉज हो सकते हैं लैंग्वेज डिले के, देयर आर एन नंबर ऑफ कॉजेस, सो वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। Why does my child of 3.5 year walk on his toes? Toe walking करता है, 3.5 कब toe walking abnormal है, कब normal है? Yes, fine. So a very nice question. Actually, many of the doctors consider toe walking physiological. Physiological म्हणजे normal. कई डॉक्टर्स 3 years तक गिनते हैं, कई डॉक्टर्स 4 years तक गिनते हैं। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है, ये चीज आपके बच्चे की नॉर्मल है। पर पहले नॉर्मल बोलने से पहले हमें बच्चे को देखना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो टिप्टो वॉकिंग होता है वो बहुत ओकेजनल हो सकता है। ओकेजनल मतलब कोई कोई बार, कई बार ऐसा हो सकता है कि उसने बहुत लेट वॉकिंग चालू किया। जब बच्चा सबसे पहले वॉकिंग चालू करता है तो वो टिप्टो या थोड़ा ब्रॉड ही चलता है, उसके बाद ही बच्चा प्रॉपर चलता है। तो शायद उसने वॉकिंग लेट किया, हमें पूरी हिस्ट्री नहीं पता है, सो मुझे डिफिकल्ट होगा बोलना, पर ऐसा भी हो सकता है उसने अभी अभी वॉक शुरू किया इसलिए वो टिप्टो चल रहा है। तीसरा, इट कैन बी अ सेंसरी इशू। ओके, बच्चे को अच्छा लगता है, प्लेजर सीकिंग होता है सिर्फ टोस पे चलना, वेरी डिफिकल्ट फॉर अस पर इट्स प्लेजरेबल फॉर मेनी किड्स, बहुत मजा आता है उनका। अदरवाइज इट कैन बी समथिंग स्नायु मसल का प्रॉब्लम, कई बार टाइट मसल्स भी हो सकते हैं, डॉक्टर एग्जामिन करके आपको बताएंगे कि और कोई टेंडन का या ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। ओके, एंड एज आई सेड इट्स अ सेंसरी, इट कैन बी अ सेंसरी इशू, सो इट कैन बी अ पार्ट ऑफ ऑटिज्म एज वेल। सो नॉर्मल से लेके डिसऑर्डर तक कुछ भी हो सकता है, हिस्ट्री बहुत कम है, डॉक्टर पूरा देख के आपको बता पाएंगे क्यों ऐसा है। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं उनके शूज की जो सोल है या उनकी चप्पल का जो सोल है, मैं उसे जरूर ऑब्जर्व करता हूँ कि किस तरह से घिस रहा है ये, बिकॉज दे आर इन सर्टेन सिचुएशन ही इज एंजॉयिंग दैट, तो वो उसके जूते सही निकलेंगे।
So there are so many things what we look for it. और कई Yeah. बार बच्चे बहुत इरिटेटेड आते हैं और बहुत उनमें कोमोर्बिडिटी वगैरह होती है, तो मैं पहले कोशिश करता हूँ उन्हें रेस्पेरिडॉन या इस तरह की कोई दवाई दे के उनको, या उनके साथ में जो लाइक एनीमिया है या कोई डेफनेस का कोई एलिमेंट है, नॉन सिक्रेटरी टाइटस मीडिया है, एडिनोइड्स है, स्लीप प्रॉब्लम है, स्लीप आर्किटेक्चर Sleep issues, very करके तब मैं उन्हें थेरेपी के लिए एडवाइस करता हूँ। Yes. बिकॉज कुछ तो बच्चा रिसेप्टिव होना चाहिए कि आप कहीं जाए और एक स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट में जाए, बट पेरेंट्स का वहाँ कॉपरेशन नहीं होता। वो आते जरूर हैं और आने के बाद वो देयर इज नो फॉलो अप कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, जबकि हमारी क्लिनिक पे तो एक फैसिलिटी है, मैंने 4 to 6 का टाइम रख रखा है कि आप फाइल लेके आ जाओ बिना बच्चे कैन टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन, सो दैट बच्चे का नुकसान ना हो। अदरवाइज यू गेट रजिस्टर्ड एंड वो रजिस्ट्रेशन के चक्कर में फिर वो बार बार आते नहीं है। सो आई ट्राई टू कोऑपरेट विद देम एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कॉज, और फिर मैं उन्हें, जैसे हमारे मेरठ में एक सार्थक है जहाँ पे हम थेरेपी के लिए बच्चों को भेजते हैं, बट उसके लिए भी ना उनको पेरेंट्स को मेंटली पहले प्रिपेयर करना होता है कि भाई उससे फायदा है वहां जाके कोई, क्योंकि एकदम से अगर आप आते किसी को बोलते हो तो दे बिकम वेरी जजमेंटल। Yeah, very true. अब Very धीरे धीरे practical tips अवेयरनेस है। बढ़ती जा रही है, अवेयरनेस Yes. बढ़ती जा रही है अब बढ़ती थोड़ा जा सा, बट मैं फिर भी लेबल देना नहीं चाहता हूँ, किसी को मैं लेबल नहीं देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आप इसके सिम्टम्स, इसकी प्रॉब्लम पे वर्क करो। लेबल विल बी डिसहार्टनिंग, लेबल से तब फायदा है ना, बुखार हो रहा है कि टाइफाइड है, मलेरिया है, क्योंकि टाइफाइड की दवाई अलग है, टाइफाइड की दवा बोले नहीं कर। तो आई ट्राई टू कन्विंस देम कि भाई आप जो फोकस है उसकी जो बिहेवियर है उसको बेटर करने पे करो, और बहुत सारी चीजें ऐसे बेटर हो जाती हैं। बट द ओनली थिंग इज वो एक बार आने के बाद दोबारा रिपीट नहीं होते, दे स्विच टू सम अदर डॉक्टर, फिर वो तीसरे पे जाते हैं, फिर वो चौथे पे जाते हैं, दे बिकम जजमेंटल, Very या तो खुद इन्वॉल्व होने लगते हैं, खुद पढ़ने लगते हैं। तो मैं छोटी छोटी चीजें जो मेरी प्रैक्टिस में है उससे बहुत बच्चे बहुत ठीक हो जाते हैं। yes. एंड आई यूज जो भी जरूरत है, स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है, ऑक्यूपेशन थेरेपी की या पूरी थेरेपी की जरूरत है, तो वी ट्रीट देम लाइक दैट। एक और क्वेश्चन आ रहा है, why do my kid flaps why does my kid flap hands frequently? अगेन उन्होंने सिर्फ किड लिखा है, एज नहीं लिखा। ओके, सो अगर आपका 1-1.5 साल का बच्चा है, और अगर पहले तो हैंड फ्लैपिंग, मुझे नहीं पता पेरेंट्स ने ये हैंड फ्लैपिंग कैसे डिफाइन किया। ओके, क्योंकि अगर बच्चा ऐसा ऐसा भी कर रहा है, ऐसे ऐसे भी कर रहा है, पेरेंट्स के लिए वो हैंड फ्लैपिंग हुआ। तो लेट्स सी, पहले मैं वो वीडियो देखना चाहूंगी अगर सही में वो हैंड फ्लैपिंग है कि नहीं है वो बच्चे का। ओके, और अगर आपका 1-1.5 साल का बच्चा है, कई बार हैंड स्टीरियोटाइपिस, रेपिटेटिव स्टीरियोटाइपिस, कोई बार नॉर्मल वेरिएंट भी हो सकता है अगर उसका बाकी का डेवलपमेंटल माइलस्टोन नॉर्मल हुए। तो अगर हैंड फ्लैपिंग परसिस्टेंट है और स्पेसिफिक सेटिंग में है, जैसे कि बहुत खुश हो गया, एकदम गुस्सा हो गया, सो इमोशनल कंट्रोल नहीं है या मेल्ट डाउन है, तो ये चीजें थोड़ी अलग हो सकती है, तो उसका इलाज थोड़ा अलग हो सकता है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज कि वो हैंड फ्लैपिंग क्या है और एज बच्चे की क्या है। एंड डेफिनेटली मैं एक वीडियो देखना चाहूंगी कि पेरेंट्स ने जब हैंड फ्लैपिंग बोला तो उनको उनके लिए एग्जैक्टली वो हैंड फ्लैपिंग हुआ क्या। सर योर इनपुट सर। आप वो वीडियो आप दिखाना चाह रही थी ना, वीडियो Yes. दिखाई। आई वाज आस्किंग कि मैं पेरेंट्स से वो वीडियो मांगू, क्योंकि कई बार पेरेंट्स बोलते हैं मैडम बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, सो वो सही में कई बार सिर्फ वो पेरेंट्स है, वो हैंड फ्लैपिंग होता ही नहीं है। मतलब आई ऑलवेज आस्क पेरेंट्स कि जो भी आपको एब्नॉर्मल दिखता है 10 सेकंड का वीडियो बना दो। यस एग्जैक्टली, वीडियो बनाने के नाम पे 15 मिनट का वीडियो बना के लिए आते हैं, वो 10 सेकंड का वीडियो बनाओ एंड शो इट टू अस, तो वो हम जज करेंगे कि वेदर इट इज एप्रोप्रिएट और इट इज इनएप्रोप्रिएट। यस, और ट्राई टू कैच दैट मोमेंट। अब ये मल्टीमीडिया मोबाइल की तो आसानी हो ही गई है, कई बार सीजर डिसऑर्डर में दे पिकअप, सीजर डिसऑर्डर बहुत आसान हो जाता है समझना। बट ये एक बार में किसी डायग्नोसिस को पकड़ना और एक बार में सब कुछ कर देना, इट इज नॉट, ये टॉन्सिल का ट्रीटमेंट नहीं है या निमोनिया का ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने डायग्नोसिस लेवल करी और ट्रीटमेंट कर दिया। एंड वी आल्सो रिक्वायर मैनी ऑब्जर्वेशन, किसी बच्चे को हमें क्या कहना है और किस डायरेक्शन में लेके चलना है। yes. तो उसके अंदर पेरेंट्स का बहुत कोऑपरेशन चाहिए।
यस सर, एंड लॉट ऑफ असेसमेंट्स पेरेंट रिपोर्ट करते हैं बच्चे का फंक्शनल लेवल क्या है। ऑलमोस्ट सर 3-4 घंटे निकल जाते हैं एक बच्चे को असेस करने के लिए। सो ऑन द फर्स्ट कंसल्टेशन वी जस्ट राइट द हिस्ट्री, ऑब्जर्वेशंस, प्रोबेबल डायग्नोसिस 1 2 3 4 व्हाटएवर वी फील, और फिर असेसमेंट्स करना, ये करना, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन काउंसलिंग। सो पेरेंट्स का Mostly भी वो मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है कि शायद बार बार आना पड़े, इट्स ओके, विल कम। मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है ना, पेरेंट्स अपने बच्चे को दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं एंड दे ऑलवेज से ये नहीं करता। अभी आज ही मेरी क्लिनिक पे एक थोड़ा सा डिसेबल्ड है बच्चा, जुड़वा बच्चों में से एक है, और वो इतना फ्रिटेंड था और बिल्कुल विड्रॉन में चला गया क्योंकि उसके फादर उस पर गुस्सा होते रहते हैं, तेरा भाई ऐसे करता है तुझे नहीं करा, मतलब ही शाउटेड ऑन हिम। तो ये बहुत रॉन्ग पेरेंटिंग, और मैंने उसे थोड़ी देर में उसको हाई फाइव करके और उसको मैंने ईजी भी करा लिया। उसका फादर कहता है ईजी नहीं कराएगा, उसने ईजी वगैरह करा लिया। तो पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट से मैं सब पेरेंट्स को बोलता हूँ भाई कुछ अच्छा भी तो करता होगा ना, जो कुछ अच्छा लगता होगा तो उसको पकड़ लो और उस पर बिल्डअप करना शुरू करो, और या इसको कोई टास्क दो स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट में कि जाओ ग्लास रख दो, ग्लास में पानी भर लो, ग्लास पापा को दे दो। तो एक सारे के पापा को पानी पिला दो की जगह आपने उसे 3 बार में डिवाइड कर दिया। दैट इज हाउ चिल्ड्रन लर्न। तो अगर हमारा बच्चा कहीं लैग कर रहा है तो हमें उसको इम्प्रूव करना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ना कि हम दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं या डॉक्टर को ही जज करने बैठ गए कि ऑटिज्म है या नहीं है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेरेंट दे कम टू लिसन कि इसे ऑटिज्म नहीं है क्योंकि उन्हें किसी ने ऑटिज्म बताया होता है। They do not want to work on the problem and the parenting part. I ask them to fix on the issue. जैसा कि आपने कहा ना, आप अपने symptoms पे ध्यान दो, उसको better करो। Because इस diagnosis से कोई पद्म भूषण या कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला, ना ही इस diagnosis से कोई हमें एक special medicine दे देंगे। There are certain children जिसमें irritability बड़ी बहुत है, तो उसमें atypical antipsychotic use करते हैं low dose में, और बच्चे उससे बहुत अच्छा करते हैं। There's one more question. Why do many kids like to spin and jump? Like to Spin and jump. spin, okay, fine, ठीक है। कई बच्चों को, हाँ या स्पिन एंड जंप, ओके। सो कई बच्चों को ऐसा होता है कि उनको मोशन सीकिंग बिहेवियर अच्छा लगता है, ओके। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ रेपिटेटिव मूवमेंट, घूमना, एकदम एक्साइट हो गए घूम लो, जंप कर लो, ओके। सो इट कैन बी अ पार्ट ऑफ सीकिंग मूवमेंट। अगर आप उसको अच्छे से रूटीन बना दोगे, स्ट्रक्चर्ड रूटीन, तो रेपिटेटिव मूवमेंट्स ऑब्वियसली कम हो जाती है और फंक्शनल मूवमेंट्स इंप्रूव हो जाती है। जैसे कई बच्चे स्विच ऑन चालू बंद, हैंड फ्लैपिंग बहुत करते हैं, तो मैं उनको सिंपल बोलती हूँ कि ये चीज थोड़ी अजीब लगती है, कन्वर्ट इट इनटू फंक्शनल मूवमेंट। खुशी हो रहा है ना, खुशी में क्लैपिंग इज टोटली ओके। हैंड फ्लैपिंग आपको अजीब लग रहा है, जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू दिस, आपका बच्चा फंक्शनल, नॉन फंक्शनल से फंक्शनल मूवमेंट की तरफ ट्राई कीजिए, आपका बच्चा ऑलरेडी नॉर्मल है, सो दे फील मोर कॉन्फिडेंट। सो ये भी आपकी जो चीजें हैं स्पिनिंग एंड जंपिंग, अगर आपको नॉन फंक्शनल लग रही है, ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू फंक्शनल बाय फाइंडिंग आउट कि कब होती है, कैसे होती है। और स्विच ऑन ऑफ को कैसे करेंगे फंक्शनल में? उसके लिए सर हम कई बार ग्लव्स यूज करते हैं। हम पेरेंट्स को बोलते हैं, आजकल वो कार्टून वाले जो टॉयज आते हैं ना सर, सो दे यूजुअली लाइक द फिंगर पपेट्स। सो वो जैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ करने जाते हैं ना, दे सी समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, वो चीज में घुस जाते हैं। इवन पेरेंट्स को हम वही चीजों का पेयरिंग बोलते हैं, सो दे पेयर विथ ईच अदर, तो वो छूट जाता है और ये चीज आ जाती है। सो ट्राई टू कि थोड़ा और अच्छा इंटरेस्टिंग बनाओ, तो वो चीज कम हो जाती है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो जिनके पेरेंट्स कहते हैं एक जगह टिकता ही नहीं है, ये रुकेगा ही नहीं, तो मैं उनको बोलता हूँ देखो मेरी क्लिनिक पे जो बिहेवियर है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आप बहुत देर से बात कर रहे हो मुझसे, तो ये बोर हो गया है, बोर हो रहा है। बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस। अब मैं उनसे पूछता हूँ आप इसकी टीचर की रिपोर्ट क्या है, बिकॉज टीचर की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कहेंगे टीचर की रिपोर्ट ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये कोई कंप्लेंट नहीं है वहां से, तो देन इट ट्रेसेस अ प्रॉब्लम, भाई ही इज सीकिंग योर अटेंशन। अब कैसे पेरेंट्स को समझाती है और क्या करना चाहिए? यस, वेरी ट्रूली सेड सर, क्योंकि मैं भी जब इंग्लैंड में थी ना, द ओनली थिंग दे वर फोकसिंग ऑलवेज वाज स्कूल फीडबैक, कि स्कूल का ऑब्जर्वेशन क्या है, क्योंकि बिहेवियर तभी दिक्कत वाला है जब वो परवेजिव है, हर सेटिंग में दिक्कत देता है। अगर स्कूल सब अच्छा बोल रहा है, मतलब घर में फोकस ढूंढो, कहाँ प्रॉब्लम मिल रहा है, पॉजिटिव अटेंशन, नेगेटिव अटेंशन, ऐसा आपने करेक्टली बोला। कई बार जैसे पेरेंट्स इतना गलत जगह पे अटेंशन दे देते हैं, तो वो बच्चे का वही बिहेवियर बार बार रिपीट होता है कि मम्मी पापा शांति से 15 मिनट बैठा हूँ, ड्राइंग कर रहा हूँ, तो एक भी बार अप्रिशिएट करने नहीं आए। जैसे ही सोफा पे कूदने गया, मम्मी पापा तुरंत दौड़ के आए, यहाँ पे मत कूद, नीचे उतर जा।
सो वो अटेंशन कब मिला? जब उसने कुछ अलग या गलत बिहेवियर किया. सो आई ऑलवेज से पेरेंट्स कि जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होना चाहिए वो सिर्फ गुड बिहेवियर के लिए होना चाहिए और वो फ्रीक्वेंटली होना चाहिए. आप ऐसा मत सोचो अभी शांति से बैठा है, बैठने दो, कोई बुलाने मत जाओ. इनफैक्ट जाओ और अप्रिशिएट करो, अरे मेरा बच्चा कितना अच्छे से बैठा है, चलो अपन दोनों ड्राइंग करते हैं. और जब बच्चा कूद रहा है तब आप जाके उसको अटेंशन दे रहे हो, चिल्ला रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव अटेंशन सब साथ में मिल रहा है. सो दिस इज ऑल, बच्चा पूरा डाइवर्ट हो जाता है. कई बार पेरेंट्स का अटेंशन राइट नहीं रॉन्ग टाइम पे पहुंचता है और बच्चा अटेंशन सीकर बन जाता है. राइट. एक sometime there is one question, why does my kid stare into the space? एक ही तरफ देखता रहता, लखाता रहता. Yeah, staring into the space. So it can be see, जो staring into the space है वो कितने सेकंड्स या कितने टाइम क्या चीज देख रहा है. कई बार इन बच्चों को यूजुअली सीकिंग बिहेवियर में फैन, शेडोज, लाइट्स, कोई स्पार्कलिंग चीज है तो ऐसी चीजों बहुत पसंद होती है. पहले देखो वो कौन सी तरफ देख रहा है. कई बार लाइट ही स्टेयर कर रहा होता है, लाइट ही देख रहा है, लाइट ही. तो क्या देख रहा है वो देखो, मतलब कितने टाइम के लिए देख रहा है, आपको रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं. इट कैन बी अ पार्ट ऑफ सीजर, जैसे सर ने बताया, वो फिट का भी या झटके का भी प्रकार हो सकता है. वो सिर्फ अगर स्टेयर कर रहा है तो ठीक है, तो उसका वो कैप्चर करना, कहाँ देख रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं, वो सब चीजें कैप्चर करके आप एक बार डॉक्टर को दिखाइए कि वो सेंसर इशू है, एडी मतलब कोई आपका झटके का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है. और कई बार ऐसा भी हो सकता है सिर्फ वो अपना ध्यान इन अटेंशन, मतलब अटेंशन के बिना ऐसे ही अपनी तंद्री में चला गया. इट कैन बी पार्ट ऑफ इन अटेंशन और getting lost into their world as well. It can be a part of anything. Okay. What if my child has trouble with transitions? जब एक सिचुएशन चेंज होती है, मान लो कोई गेस्ट आ गया घर के अंदर या स्कूल जा रहा है. Very true. Transitions, yes. I think so. ये सब questions थोड़े pertaining to autism ही है पेरेंट्स के क्वेश्चन. ट्रांजिशन मतलब कोई भी एक चीज से दूसरी चीज की तरफ आपका जो बदलाव होता है, वो बदलाव इन बच्चों को, जैसे मैंने बोला, उनको एक ही चीज पसंद है, रूटीन. मंडे टू संडे भी रूटीन दे दो चलेगा, संडे भी उनको ऑफ नहीं चाहिए. तो वो चीजों को प्रिपेयर करना, उनका माइंड प्रिपेयर नहीं होता, इसलिए वो अलग तरीके का बिहेवियर करता है. आपको लगता है अरे यहाँ पे क्यों एकदम रोने लगा, नहीं, अगर डॉक्टर के पास गया, नई जगह गया, एकदम चिल्लाने लगा, नई जगह गया, रोने लगा. सो व्हाट यू कैन डू, प्रिपेयर योर चाइल्ड. अभी आप बोलेंगे मैडम बच्चा सुन नहीं रहा है, मैं कैसे प्रिपेयर करूं. सो प्रिपेयर अ चार्ट और समथिंग. ये बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं, आप उनको दिखाओगे वो लर्न करेगा. जैसे हमारे यहाँ पहले पे ही ऐसा होता था कि थेरेपी के लिए बच्चे आते रोते ही रहते थे. सो व्हाट आई यूज्ड टू से पेरेंट्स, आप एक हफ्ते बाद शुरू करो. पहले हफ्ते में हर रोज चार्ट पेपर सुबह शाम दिखाना शुरू करो, सीक्वेंस. जैसे घर से निकले, फिर कोई एक पुतला दिखाया, कुछ भी, कोई स्पेसिफिक चीज जो हर रोज दिखेगी, जो आप हर रोज दिखाओगे. फिर हॉस्पिटल का एक फोटो, एक डॉक्टर की चेयर का फोटो या थेरेपी रूम का फोटो. आपका बेटा खत्म हुआ, फिर मम्मा आपको टॉफी, स्टार या कुछ भी रीइंफोर्समेंट देगी और फिर अपन वापस जाएंगे. अब बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करोगे कि हम नई जगह जाने वाले हैं और आपको ये चीजें वहां पे मिल सकती है, तो अगर वो प्रिपेयर्ड रहेगा तो उसके सिम्टम्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे. तो नया स्कूल, नई जगह, प्रिपेयर है. चार्ट पेपर बनाइए, इसको हमारी भाषा में पेक्स बोलते हैं, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम. इनको अच्छा लगता है देखना, he'll be more prepared और उसका बिहेवियर बेटर होगा. आई एम वेरी श्योर. कुछ बच्चे हैं जो हक करने से बड़ा बचते हैं या थोड़े सेंसरी इशू होते हैं, उन्हें छू दो तो कूद के इधर बैठ जाएंगे, उन्हें लगेगा पता नहीं क्या हमें क्यों छू दिया. देयर आर सो मेनी सेंसरी इश्यूज विद द चिल्ड्रन. यस, वेरी ट्रू. वो टेक्टाइल डिफेंसिवनेस होता है. कई बार बच्चों को सिर्फ हग या नहीं, कई लोगों के टच से भी प्रॉब्लम होता है, तो वो थोड़े टेक्टाइल डिफेंसिव होता है कि हमारा कंफर्ट जोन है, छुओ मत, टच मी नॉट टाइप्स. तो वो बच्चों को हम धीरे धीरे सेंसिटाइज कर सकते हैं विद ग्रेजुअल टच एंड ग्रेजुअल एक्सपोजर. हम पहले वो हमारे हाथ से हैंडशेक से कंफर्टेबल है कि नहीं, फिर हमारे पास कॉन्टैक्ट से कंफर्टेबल है कि नहीं, फिर हम हाफ हग, फुल हग. ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स है कि जो बोलते हैं मैडम मैं हग करता हूँ, ऐसे पसंद नहीं आता. सो गो स्लो विथ योर चाइल्ड. वो जितना देर कंफर्टेबल है उतना उसको टाइम दो. When he'll be okay, he'll definitely, उसको पसंद है आपका हक, ऐसा नहीं है उसको आपका हक पसंद नहीं है, सिर्फ he is just taking time for that physical contact. Give that time. और वैसे ही हमारे साथ भी होता है. जब मैं पीडियाट्रिशियन, मेरे को एमडी पीडियाट्रिक्स मिली तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हो गया बिकॉज आई वांटेड टू डू एमडी मेडिसिन एंड आई गॉट एमडी पीडियाट्रिक्स.
और मैं बच्चे छूता था तो वो मुझे बिल्कुल ऐसे टिंगलिंग सी लगती थी कि वो उन्हें छू के मेरे हाथ से फिसल ना जाए, मैं पकड़ना भी नहीं चाहता था। तो ऐसा तो ये सेंसरी इश्यूज सबके साथ ही थोड़े बहुत होते हैं, रहते वो हैं। हम एक्सजरेट ज्यादा करते थे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर निराली। एक हमारे जो हमारी ऑडियंस पेरेंट है मिस्टर Yes. राजीव शर्मा, उनका एक सवाल है कि वो Yes. हाइपर एक्टिविटी और स्पीच डिले का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बट वो उनका जो फॉलो अप है वो नहीं है। जो मुझे लगता है उनका क्वेश्चन है कि वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल की टीचर ने कहा ये संभल नहीं रहा है, बैठ नहीं रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अगर वो डॉक्टर पे रेगुलर फॉलो अप में रहना चाहिए, स्पेशल एजुकेटर, क्या क्या चीजें, क्या इट शुड बी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच और इट शुड मेरी ओनली वन काइंड ऑफ अप्रोच? Yes. ये जो भी और या पेरेंट क्या है, ये एक बार में जाके ठीक करा जा सकता है कि किसी डॉक्टर के पास चले गए? और क्या होता क्या है, जो मैं सोचता हूँ पेरेंट की साइकोलॉजी, वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। और दूसरे, मैं पेरेंट्स से बोलता हूँ कि जब आप मेरे पास आते हो तो राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स और द बैक साइड ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, एंड आफ्टर 1 month or so you कंपेयर कि यहाँ से हम कहाँ पहुंच गए। बट आप क्या करते हो कि कंपेयर करते हो जब आप 100 से एकदम फर्स्ट पे पहुंच गए, तो फिर आपको लगता है कोई फायदा ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा इम्प्रूवमेंट, और उससे बच्चे का बहुत नुकसान हो जाता है। आपकी क्या कहना है इस बारे में? Yes. वेरी राइटली सेड। ये चीजों में थोड़ा सा पेशेंस, सबसे ज्यादा पेशेंट की तरफ से मेरा एक ही एक्सपेक्टेशन होता है, कोऑपरेशन, पेशेंस और भरोसा। अगर आपको पता है आपका डॉक्टर बराबर ट्रीटमेंट कर रहा है तो ये चीजें कई बार लंबी चलती है। ऐसा भी हो सकता है, मैंने ऑब्वियसली आपके बच्चे को नहीं देखा तो मुझे उसका तकलीफ कितना पीछे है, क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ है, नहीं पता है। पर जो भी आपके डॉक्टर है, आप उनके ऊपर भरोसा करके अगर ट्रीटमेंट थोड़ी लंबी भी चले, ये कई बार सालों साल तक चल सकती है। ओके, क्योंकि कई बार वीकनेस एक ओवरकम हो गई, बच्चे की उम्र तो बढ़ने ही वाली है, वो छोटा तो नहीं रहने वाला है, नई 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 चीज आ जाएगी, नई नई डिमांड्स आते रहेंगे। सो आपको टच, डॉक्टर के कांस्टेंट टच में रहना पड़ेगा। एक पूरी टीम होती है, सिर्फ डॉक्टर नहीं होता। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं डायग्नोसिस करती हूँ, पेशेंट के असेसमेंट करती हूँ, पूरा प्रोफाइल ढूंढती हूँ, फिर मेरे टीम में मेरे थेरेपिस्ट होते हैं जो मेरे साथ बैठ के वो एक एक बच्चा डिस्कस करते हैं कि मैडम आज चीज ये हुई, यहाँ से यहाँ बेहतर हुई, यहाँ पीछे गया। कई चीजों में मेडिसिन का रोल भी है, कई चीजों में थेरेपेटिक रोल है। सो वो एक डॉक्टर गाइड करके आपको बता सकता है। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी और वो सब बहुत ब्रॉड डोमेन हो गए। ठीक है, उसका कारण ढूंढना, उसको बराबर टीम के साथ मैनेज करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 महीने के बाद प्लीज पेरेंट्स हताश मत हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है 2-3 महीने में बच्चा तुरंत बोलने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। पर एटलीस्ट एक जगह बैठने लगे, आपका समझने लगे, आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लगे, अपन धीरे धीरे स्टेप से ही आगे बढ़ते हैं। सो विथ ईच एंड एवरी स्टेप्स सेलिब्रेट विथ योर डॉक्टर, विथ योर थेरेपिस्ट, बट ट्रस्ट देम। आपको थोड़ा लंबा टाइम लगे तो कंटिन्यू करिए, फिर वो कोई भी हो, आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, सब लोग टीम में है। पर एक डॉक्टर ऐसा है जो हर चीजों को देखता है, उसको हर डॉक्टर का रोल भी पता है और कहाँ कौन सी वीकनेस में कहाँ भेजना उसको भी पता है। तो जो भी आपके पीडियाट्रिशियन, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन जो भी है, उनके कांस्टेंट संपर्क में रहेंगे, तो ही आपके बच्चे का पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से होगा। इसका जो बेस्ट तरीका है डियर पेरेंट्स, आप अपना जब भी डॉक्टर के पास जाएं, अपने बच्चे की प्रॉब्लम उनके प्रिस्क्रिप्शन पे लिख लें, जिससे कि जब नेक्स्ट मंथ या 2 months या जब भी आप जाते हैं उनके पास, तो आपको पता हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। एंड यू शुड हैव ए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। वी डू नॉट हैव एनी मैजिक वैंड इन आवर हैंड। हम भी कोशिश करते हैं और कोशिश करके ही बच्चे ठीक होते हैं, और बहुत सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। एंड इट इज मोस्ट ऑफ द डिसीज हैविंग मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। आप देखिए, आपका आप घुटना पलटवाते हैं तो उसके बाद रिहेबिलिटेशन के लिए आपकी फिजियोथेरेपी होती है। इट इज नॉट ऑल मेडिसिन ओनली कि सिर्फ दवाई से कोई ठीक हो जाएगा या आप सिर्फ एक्सरसाइज से ही सही हो जाएगा। इट इज ए मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच जो आपको ये मतलब हम सबको समझनी होगी। और कुछ बच्चे बहुत जल्दी ठीक होते हैं, कुछ बच्चे ज्यादा टाइम लगते हैं। इसलिए ही इस बीमारी का नाम ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। और हर बीमारी, जैसे ब्लड प्रेशर की भी दवाई एक नहीं होती ना जनरलाइज के आपने एक बच्चे को दे दी। इवन सबके चश्मों का नंबर भी अलग अलग होता है, किसी का -1 है तो किसी का -5 है। तो वी हैव टू गो अकॉर्डिंगली एंड वी हैव टू हैव पेशेंस एंड ट्रस्ट इन द डॉक्टर। थैंक यू सो मच डॉक्टर निराली, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बहुत ही
आई एम एनलाइटेंड. मैंने आज तक इतनी बढ़िया डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स की टॉक नहीं अटेंड. इट वाज सच it is so good. It is first time I really enjoyed your talk, and you are so point to point accurate and practical, जो मुझे भी बहुत समझ में आई और मैं उम्मीद करता हूँ पेरेंट्स को भी बहुत समझ आई. अरे थैंक यू सो मच सर. इनफैक्ट इट्स एन ऑनर एंड इट्स अ ब्लेसिंग आपसे इतने सारे अच्छे वर्ड्स आप सुनने. ऑनलाइन थैंक यू सो मच. ऑनलाइन कंसल्टेशन अपनी प्लेटफॉर्म पे प्लीज शेयर कर दीजिए. Yes. मेरे को भी आपकी सर्विस यूज करना चाहेंगे. मेरे पास काफी बच्चे होते हैं जो मैं आपके साथ अब मेरे अपने ऑफिस से कहूंगा आपकी कंसल्टेशन कराएं. यस डेफिनेटली सर. आई डेफिनेटली मैं अपना क्लिनिक का नंबर और अपॉइंटमेंट नंबर यहाँ पे शेयर कर रही. अगर शेयर हो रहा है तो आपको. हाँ जी, अगर शेयर हो रहा है. यस. सो ये मेरा क्लिनिक का नंबर है. अगर किसी को भी अपॉइंटमेंट लेनी हो सर, एंड आपके पास तो सर सब चीजों का कांटेक्ट है. यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम एनी डे. I would be happy to help you, and it's really very nice. In fact, I'm the best mom ने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि पेरेंटल अवेयरनेस भी हो, ओपन डिस्कशन हो. सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग. एंड इतने अच्छे सीनियर पीडियाट्रिशियन के साथ इट्स ऑलवेज एन honor to be on this stage. Thank you so much once again. Thank you so much. Thank you. ma'am. Thank you. Dr. Nirali. And with this, I must also thank Dr. Sama Kulkarni. She was with us in the whole session. Thank you so much, ma'am, for being a audience. It's an honor to have you today in our program. So parents, autism is a diagnosis, but it isn't destiny or end of everything or our karma or the complicated technicalities from various groups and professionals. So let us join together and make the tears to sadness to become tears of the joy of the family. Now, with this, we are also doing a very social cause, you may say, or to spread the awareness, Art for Autism, which has been reached to many countries, and thousands of artists, non-artists, who are believing this should be a part of inclusion in our mainstream. So I would request, please do participate in Art for Autism, which is now live for the current year. We have been doing it for last 2 years. And as a pledge, we will be sharing and taking it forward every year as a mission. Please, this is artforautism.in. The process and how to participate is written. So let us spread the awareness how we can make the kids more inclusive when they are going through the spectrum. With this, thank you so much, Dr. Anuj sir and Dr. Nirali, for spending your evening with our audience. Thank you, audience. Thank you.